A day after Jijaji Robert Vadra's fans and his self-appointed campaign managers hit the ground in Amethi with their tractor, we're getting information from top sources that the Gandhi siblings have finally made up their mind to fight for the family's prestige in the seats of Amethi and Rai Bareli. Rahul Gandhi, whose fate from Wayanad will be sealed tomorrow, is likely to head to Amethi, and Congress will make the official announcement after voting gets done in Wayanad. If Rahul Gandhi chooses to fight from the seat, he will be left with just 20-odd days to campaign. And against whom? Against Union Minister and Amethi's incumbent MP, Smriti Irani. That's what the fight in Amethi could just look like. But remember, Rai Bareli is also something that one is watching out for, because the seat that was held by Sonia Gandhi for 5 consecutive terms may see the entry of Priyanka Gandhi Vadra this time. Group Editor-in-Chief Navika Kumar, in fact, spoke to Amethi MP and Union Minister Smriti Irani last night on the News Hour. Not only did she exude confidence about the victory of hers, but she also unleashed a stinging attack on the Gandhis for taking Amethi's Janta for granted. Listen in. आपको कौन अपना प्रतिद्वंदी लगता है? Who will be against you in Amethi? अब इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हाँ, कांग्रेस में लोकतंत्र सिर्फ उस परिवार तक सीमित है जिसमें, अगर आपका जो इंटरव्यू अभी चला मैंने सुना, उस व्यक्ति ने कहा सोनिया जी के दामाद हैं, प्रियंका जी के पति हैं, राहुल जी के जीजा जी हैं, इसलिए लोग गला लगाना चाहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर आकर गले लगने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं चाह रहा, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग का काम करवाने के लिए प्रत्याशी चाह रहा है। तो आज मैं स्वागत करूंगी, लाइक आई सेड, इन अ डेमोक्रेसी इट्स एवरी इंडियंस राइट टू फाइट इन इलेक्शन, चाहे वो कोई भी हो, उनकी हार यहाँ पर निश्चित है, ये वो भी जानते हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने कैंडिडेट अपना अनाउंस नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इन राय बरेली एंड अमेठी has taken things for granted, so much so that they've not announced a candidate where your election is just 25 days away. Look at what they did in Western UP in the first phase. They went and did a press conference, one on the last day of political campaign. Sources are also telling your channel that before filing their nomination for the seats of Amethi and Rai Bareli, the Gandhi siblings might just go to Ayodhya to seek Ram Lalla's blessings. Interestingly, another UP ka ladka went back to his bastion today. He's none other than Akhilesh Yadav. When he was questioned about Rahul Gandhi's Amethi entry, here's what he said. आप तो आ गए हैं कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, बीजेपी का बैंड बज गया। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद क्या इनका बैंड नहीं बज गया? इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। But the question on everyone's mind is, why is the Congress delaying the official announcement on Amethi? Let's break it down for you graphically. It is because Rahul Gandhi, remember, he's facing a tough fight from left and BJP. He didn't want to perhaps hamper his prospects in Wayanad. Or is it because Rahul Gandhi was uncertain about the way voters of Wayanad would react to his decision to fight from Amethi? Is it because he feared alienating his vote bank in Wayanad? Or is it a part of Congress's strategy to counter BJP's Dar Gaya narrative? Or is it perhaps because he wanted to play the Ram card after Wayanad contest and ahead of the Amethi battle? While speculation is buzzing, but now let's show you how the political fight over this development is playing out. Listen into the top political reactions trickling in. Now, I would like to ask Rahul Gandhi, if you are a wise politician, if you are a gentle politician, you could have clarified before Wayanad election comes, no? After April 26th evening, he is going to Amethi. So cheating Wayanad, neglecting Wayanad, betrayed Wayanad. मैंने एक बात एक महीने से पहले बोलना, Rahul Gandhi will go to Ayodhya and have a darshan in there, and he will say that I am the big Ram Bhakta, more than more. But before election, Wayanad election, he will never go. क्यों ऐसा? मुस्लिम लीग के साथ लड़ रहा है, जमात इस्लामी के साथ लड़ रहा है, PFI के साथ लड़ रहा है। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, बौखलाहट है। राहुल जी का नाम खाली चर्चा में आ गया, हवा खराब हो गई।
तो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी परेशान हो चुकी हैं, उनको लोग कहीं नहीं मिल रहे। अब अमेठी की चीजों को समझ चुकी हैं कि अमेठी की जनता झूठे लोगों को नहीं पसंद करती। अमेठी की जनता को गुंडा बोल रही हैं, वो अमेठी के लोग हैं, अमेठी के नागरिक हैं, अमेठी के वोटर हैं, वो उसका जवाब मांग रहे हैं। Let's quickly open this up with our guests joining us this evening. We have Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP. Also with us is author Shantanu Gupta. But my first question is to leader of the Congress party, Mr. Ajay Verma. Ajay Verma जी, क्या चल रहा है? काफी समय से ये चर्चा में थी बात कि शायद राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, पर कल के बाद फेज 2 के बाद ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपना कैंडिडेचर डिक्लेयर करेंगे, और शायद यही सबसे बड़ा सच रहेगा इस चुनाव का। ऐसा क्यों भाजपा पूछ रही है और पूरी जनता पूछ रही है अमेठी की? शायद देखिए, भाजपा जो पूछ रही है उसका जवाब तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। हम तो इस देश के मतदाता जो देवतुल्य वोटर है उनका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से और समस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि कल मतदान का द्वितीय चरण है, परिवर्तन का युग है। अपना मत और अपनी वोट देने के लिए जरूर हिंदुस्तान के लोग निकलें और भारी संख्या में मत का प्रयोग करें और परिवर्तन की बयार जो है लाएं। अब मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, भारत में और कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मोदी जी की तरह वहां अधिनायकवाद नहीं है कि पार्टी छोटी आदमी बड़ा। तो राहुल गांधी वायनाड से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अमेठी से या राजस्थान से या छत्तीसगढ़ से वहां की जनता की डिमांड पर कभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। एक जगह से भी लड़ सकते हैं, 2 जगह से भी लड़ सकते हैं। हाईकमान का निर्णय। हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पिछले 40-50 साल से। हाईकमान हमारे यहाँ CEC जो हमारी कमेटी है, पावरफुल केंद्रीय चुनाव समिति, वो निर्णय लेगी कि राहुल जी कहाँ से लड़ेंगे, प्रियंका जी कहाँ से लड़ेंगे। लेकिन हमारे 2 मजबूत कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली से परिवर्तन के लिए लड़ेंगे और दोनों सीटें हम इस बार 2024 में एक सीट पहले भी थी, जीतेंगे। और हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो भारी संख्या में जीत रहा है, जो इनका एक नारा है, वो नारा इनका अब की बार 400 पार नहीं है, इनका नारा है 400 हार। तो चलिए, आप कह रहे हैं 400 हार हैं, जिसका जब मन करे कैंडिडेचर डिक्लेयर करेगा, इससे बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस ही विजय होगी, ये आप कह रहे हैं। और मैं डॉक्टर कौशल कांत से के पास जाऊंगी इस सवाल के लिए, बट बिफोर दैट अजय वर्मा जी, क्या ये सवाल जनता नहीं पूछेगी कि जो सीट अमेठी की अगर बात करें सर, जो सीट 2019 के बाद से बीजेपी के पास है, उससे पहले कांग्रेस के पास थी, गांधी परिवार के पास थी, उस पर कैंडिडेट डिक्लेयर करने के लिए इतना समय लग गया सर? अजय वर्मा जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं ना जी, इतना समय क्यों लग गया? ये तो गांधी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सर। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी। नहीं, देखिए कल वायनाड में दूसरे चरण में पोलिंग है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव आयोग को निर्देशित करा। ये लोग कह रहे हैं, सारे सिस्टम कह रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेटों में 5 चरणों में 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं ताकि कोई सिस्टम मेंटेन हो जाए, पेगासिस की तर्ज पर, इजराइल की तर्ज पर वोटों में। लेकिन ये लोकतंत्र में वोटर हिंदुस्तान का देवतुल्य वोटर होने नहीं देगा। हम लोग निर्णय कर रहे हैं। अभी तो बीजेपी कह रही है 400 पार और 400 कुछ सीटें डिक्लेयर करी हैं उसने 543 में। चले, आप निर्णय कर रहे हैं, आपने अभी भी मेरा सवाल नहीं दिया, सवाल का जवाब नहीं दिया अजय वर्मा जी। हमारा डिले कोई नहीं है, डिले कोई नहीं है, पर अभी भी मेरा जवाब मुझे नहीं मिला है। लेट मी क्विकली गो अक्रॉस टू डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द काइंड ऑफ टाइम दैट द कांग्रेस इज टेकिंग. इट इज टू ईच पार्टी टू डिसाइड व्हेन दे वांट टू डिक्लेयर अ कैंडिडेट ऑन व्हिचएवर पार्टी, एंड अमेठी इज गोइंग टू पोल्स लेटर दिस इलेक्शन सीजन. सो व्हाई शुड द कांग्रेस नॉट टेक इट्स स्वीट टाइम? भले फिर 20 ही दिन क्यों ना हो राहुल गांधी के लिए कैंपेन करने के लिए अमेठी में. बिल्कुल, ये किसी का भी संवैधानिक राइट है कि वो कब चाहे पर्चा भर सकता है जब तक टाइम है. लेकिन बात ये होती है कि राहुल गांधी जब तक वायनाड का चुनाव नहीं हो जाता तब तक नहीं आए. क्यों?
क्योंकि जब ये वायनाड गए थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहा था कि वो लोग बहुत समझदार नहीं हैं, ये उन्होंने कहा था, ये उनके शब्द हैं। और अभी आपका ही प्रोमो जो चल रहा था उसमें बताया गया कि वो शायद राम मंदिर जाएंगे। मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं, पिछले 50 सालों में किसी भी कांग्रेस नेता की या ये कहें किसी भी नॉन बीजेपी नेता की राम मंदिर या जो राम मंदिर का डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर पहले था वहां कभी गए हैं? कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह से वो राम मंदिर नहीं गए थे पिछले 50 सालों में, वैसे ही जब से हार हुई है राहुल गांधी की, उस दिन से लेकर के आज तक अमेठी राहुल गांधी नहीं गए। क्यों? क्योंकि डर था। डर किस बात का था मैं बताना चाहता हूं कि इतने सालों गांधी परिवार का शासन होने के बावजूद भी अमेठी में एक सीएचसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं था जो हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज नहीं था जो हमने बनाया, आर्मी स्कूल नहीं था जो हमने बनाया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं था 3000 एकड़ का हमने बनाया, रायबरेली के पास बाबा अंबेडकर के नाम पे रामनगर में एक स्टेडियम बनाया गया, वो हमने बनाया। क्या आपको पता है जब वहां खाद बढ़ती थी, खाद के लिए कोई पक्का इंतजाम नहीं था, खाद जब बढ़ती थी तब वहां लाठीचार्ज होता था। आज 3000 मीट्रिक टन खाद की रैक पहली बार वहां पहुंच रही है स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में। पहले लाठियां चलती थी, अब ऐसे ही बट रही है। गौरीगंज से मुसाफिर खाने के बीच में एक सड़क होती थी, वो सड़क गड्ढे में थी या मिश्रा, बीजेपी के लिए तो ये अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए तो खुशखबरी है। अगर अपना कैंडिडेचर लेट डिक्लेयर करते हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, तो चंद 20 दिन की कैंपेनिंग का समय मिलेगा। स्मृति ईरानी तो अमेठी में घूम रही हैं, हर रोज राहुल गांधी के खिलाफ बातें कर रही हैं, तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छा है ना सर? बीजेपी के लिए अमेठी नहीं पूरे हिंदुस्तान में अच्छा है, क्योंकि 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे। ठीक है, किसे चुनेंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। बट शांतनु गुप्ता, टू यू नाउ, one can't rule out the possibility that perhaps certain amount of mathematics or thought process or strategy may have gone into this, that Rahul Gandhi should first concentrate on Wayanad. When Wayanad votes, after that Rahul Gandhi perhaps should even declare his candidature. Why do it before that? Will this go against or for Rahul Gandhi? That's the big question though. What do you think? I think that seems like the strategy, but now because of the news channels and everyone talking about it, I think that's exposed in Wayanad, right? That Wayanad is they're just fiddling and flirting with Wayanad. If Wayanad doesn't work out, he will try to find some more safe constituency. The Wayanad looks safe for him because he's taking the support of PFI to Indian Union Muslim League, everyone, right? His typical minority vote bank, right? If that doesn't work out, because I think after the polling, normally you get to know, the politicians team gets to know that how the polling went on. And then he will, I think, take a recuse, which can be Amethi. But see, Amethi, his vote share is decreasing drastically, right? He's a 3 times MP from Amethi. 2004, he has 66% votage, and then he increased to 71 in 2009. Then it decreased drastically as soon as Smriti Irani came into the fray in 2014. It drastically reduced to 46%. And now it's only 43%. Right? This is the seat held by Gandhi family from 1980s, almost 43 years, from Rajiv Gandhi to Sonia Gandhi to Rahul Gandhi. Everyone, and now they've left almost abandoned. And as the other spokesman was saying, Amethi became a district in 2010, but the district headquarters building. Shantanu, why this is important? Optics-wise, very interesting, because PM Sudhakaran, Congress leader in Wayanad, says Rahul Gandhi to Wayanad mein bhi sirf 7-8 बार आए हैं पिछले 5 साल में, and then you have Smriti Irani, of course, springing in one surprise after the other in Amethi. So which way is the voter of Amethi going to vote? That is something that still remains to be seen. Considering this is a Congress bastion and the candidatures not come in so far, many continue to ask that question of the Congress party. Whether or not we'll see that development take place, we'll only have to wait post the 26th, that is tomorrow, when the second phase of voting takes place. Gentlemen, thank you for joining us this evening. We head into a very short break for now.